अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम।
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes. Hello. आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ आ रही है। आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह. We'll wait for some time. और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है वेट फॉर सम टाइम. हम चालू करेंगे 2-4 मिनट और रुक जाएंगे. ठीक है. I think let's start, huh? Everybody.
Hello. Yeah, please start. Yeah, let's start. Before we start, let me give you the roll number, because we don't want to know the name of our sisters. Also in the case brothers also. So let's give one by one. I will give the roll numbers. Okay. Yeah, we agree, right? Yes. Yeah. Please give me your name. I'll give you your roll number. Start giving me your name, please. My name My is name is Aisha. Just a minute, sister. Your roll number will be 127. Okay. 127. All right. मोहम्मद मखनूजी All My right. name is Azman. Just a minute, sister. AZ, right? Yes. 142. Thank you. 142. मखनूजी What's your good name, sister? मोहम्मद मखनूजी Mr. Muhammad. Muhammad. Your roll number will be, my brother, 136. Assalamu alaikum. My name is Faisal Abdullah. Faisal Abdullah. Faisal Abdullah. 140. 140. Thank you. मोहम्मद तासिर Okay. Muhammad Tasir. 131. ओके 131, Ustaz. Yes, please go ahead. Abrar Malik. Come again. Abrar. Abrar Malik. Yeah. Malik Abrar. 144. Thank you, sir. Thank you. Or अस्सलाम anybody else? वालेकुम Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम Assalamu alaikum. Walaikum जी salam. जी मेरा नाम शमीम है एक मिनट सिस्टर 145 145 थैंक यू सर थैंक यू सिस्टर उम्मे कुलसुम जी सिस्टर उम्मे कुलसुम हम कुलसुम Okay, I got it. 125 125 सिस्टर जज़ाकल्लाह और बाकी आप लोगों को है ना कल से इंशाल्लाह या नेक्स्ट क्लास से यू हैव टू ज्वाइन इन विद योर रोल नंबर डोंट राइट योर नेम ओके और एनीबॉडी एल्स My name is Fazila. सिस्टर all right 169 Jazakallah, brother. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा नाम वालेकुम। खुबैब है खुबैब नहीं अभी एक और में के आर मैक करके लिखा हुआ है क्या लिखा खुबैब है नाम आपने है के आर मैक MA के आर MA के नाम खुबैब है। एक अभी साहब ने 136 नंबर जिनको दिया उनका नाम भी खुबैब है क्या अच्छा वो पता नहीं मेरा नाम खुबैब मखनूजिया है मुंबई से हाँ मकनोजिया खुबैब करके एक है मेरे पास रोल नंबर 136 किसको दिया है मैंने अभी 136 रोल नंबर 136 व्हाट्स योर गुड नेम अगेन
सॉरी, तो मेरा 136 है. नहीं. Who is 136? I have already given your number to somebody else. मोहम्मद मखनूजिया 136 तो आप मोहम्मद मखनूजिया हैं और ये साहब जी मखनूजिया खुबैब खुबैब है. मखनूजिया यस हाँ हाँ जी, मखनूजिया खुबैब है मैं. अच्छा, ओके. You are related, I think. 134 134 ना. जी. ठीक खुबैब है, साहब जज़ाकल्लाह. आपका 134 है. ठीक है, मोहम्मद जज़ाकल्लाह. साहब आपका 136 है. 136 ओके ठीक, थैंक यू जज़ाकल्लाह. All right, sir. All right. Nilofer. जी sister. Nilofer. All right. 129. Jazakallah. Jazakallah. This is Nishat here. You have applied for 7 times. Sorry? आपने 18 बार अप्लाई किया सिस्टर. No, sister, 140. sir. कोई बात नहीं. Maybe it got repeated. 146. 146 is your number. Anybody else? Safna Faisal. Come again, sister. What's your good name? Safna Faisal. All right. 167. Okay. Manal. Hello. Manal. Manala Abdul Qadir, right? Yeah, sir. 141, sister. Assalamu alaikum. Okay. Jazakallah. अस्सलामुअलैकुम. Assalamu alaikum. मेरा नाम अलकम है. Okay. Al-Kama Maknoji. All right. 127. 127. 172. I'm sorry. 172. ठीक. I'm sorry. 172. I'm sorry. जी. 172. जज़ाकल्लाह. कोई रह गया? Anybody else? मेरे में सही है. Yasin. 138. 138, sister. Anybody else? कोई और? I think we are done, right? ठीक है ना? Acha, before we start, there is one more thing to discuss. What about the timing? Anybody joining from UAE? Anybody joining from UAE? Assalamu alaikum. Yes, Yeah. I'm from UAE. You got your number, sister? 127. You got your system. Now, what about the timing? Are you comfortable with This the timing? timing is okay with me. Yeah. It's 7 o'clock in the morning, Indian time, huh? Yeah, that's okay. It's all right with you? Anybody Yeah. has any problem with this timing? We can shift it 15-20 minutes by mutual consent.
Yeah, I think I would request to delay it like for 10-15 minutes. I'm from Abu Dhabi, yes, ma'am. हाँ माशाल्लाह from Abu Dhabi. So अस्सलाम आप लोग वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा नाम शोबान मखनूजिया है। जी रोल नंबर चाहिए। Cool. हाँ रोल नंबर just a minute। हाँ सोबान 171 171 ना, ठीक है, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह we have a Makhnoojia family with us। हाँ हम सब कजिन है सब, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम वेलकम। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग करीब करीब मत बैठिए, अदरवाइज द वॉइस विल गेट इकोड। वॉइस इको होगी। सब अलग अलग प्लेस पे है। जी थोड़ा दूर दूर बैठिए, जो करीब भी बैठे हैं वो दूर बैठे, जी जी क्योंकि आवाज फिर इको होगी। जी जी। अच्छा व्हाट अबाउट द टाइमिंग, क्या बोलते हैं बाकी लोग, क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू सजेस्ट? लेट्स मेक इट 7:20 फॉर द सेफ साइड। 7:20 एवरीबॉडी एग्रीज? क्योंकि बाकी भाई बहनें जो हमारे यूए से ज्वाइन होंगे ना, लेट देम ज्वाइन आल्सो, राइट? हाँ तो एक पॉइंट वी एग्री ऑन दिस 7:20। जी 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 ठीक है। देयर इज वन मोर पॉइंट कि इंशाल्लाह रमजान विल बी स्टार्टिंग सून। तो रमजानों में एक और बार उसके एक दो दिन पहले वी विल डिसाइड द टाइमिंग अगेन, वी विल शिफ्ट दिस टाइमिंग अ लिटिल बिट। ठीक है ना? वी एग्री ऑन दिस, राइट? सबका कंसर्न लेके फिर एक बार और चेंज कर देंगे टाइम, ठीक है ना? देयर इज वन मोर पॉइंट कि एवरी डे यू हैव टू ज्वाइन विद योर रोल नंबर। हाँ डोंट ज्वाइन विद योर नेम प्लीज, ठीक है? Okay. All right. And the third point is don't share the link with anybody else. Those who are registered, they can only come to the class. जो register है सिर्फ वही class में आएंगे, जो नहीं register है and they wish to register in the middle of the class, ask them to register, ask them to call me or send a SMS to me. I will enter them. I will I will add them to the group. They can enter the class, but don't share the link. Huh? You got my point? सबको समझ में आई ना बात? Yeah. अननेसेसरी ऐसे डायरेक्टली शेयर मत कीजिए। किसी को क्लास में ज्वाइन होना है, बीच में से ज्वाइन होना है, आगे से ज्वाइन होना है, वी डोंट केयर अबाउट इट। अच्छी बात है, लोग आएंगे, अच्छा है, लेकिन लेट देम रजिस्टर फर्स्ट। रोल नंबर। हाँ बॉस, व्हाट इज योर गुड नेम माय ब्रदर? इनामुल्लाह मखनूजिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। I don't have your name. इनामुल्लाह मखनूजिया। आपने रजिस्टर किया था ना? जी। इकराम मलिक। हाँ ओके, आई गॉट इट। बॉस 170 170 जी। इनामुल्लाह। यस। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इनामुल्लाह जी। अच्छा, ये 3 पॉइंट आप लोगों की समझ में आ गए सब? जी। अब एक है ना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक है ना मेरे को मॉनिटर चाहिए, एक मॉनिटर चाहिए। उनका काम क्या होगा कि है ना, लोग है ना डिस्टर्ब करते हैं बीच में ना, कोई चाय लाओ, कोई कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं, तो उनका काम, मेन काम रहेगा उनको म्यूट करने के लिए। तो एक्चुअली कोई वॉलंटियर करेंगे, मगर मॉनिटर साहब को है ना एवरीडे क्लास में अटेंड होना ही पड़ेगा। तो जो कॉन्फिडेंस है कि वो रोज आ सकते हैं क्लास में, तो वो प्लीज मेरे को पर्सनल मैसेज करके वॉलंटियर कीजिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, उनको को होस्ट बना दूंगा, ठीक है ना? तो ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, ठीक है ना? जी एवरीबॉडी शुक्रिया जी। जी थैंक यू। हाँ असल में हम लोग म्यूट हैं, इसलिए आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अनम्यूट करेंगे तो फिर वो नॉइज होगा इसमें बहुत। नहीं, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ ना, एक कोई साहब ऐसे होना। बीच में मुश्किल क्या हो रही थी भाई साहब,
लास्ट कल शाम की क्लास में भी यही मुश्किल हो रही थी, हमारी तरफ है ना नेटवर्क कुछ मुश्किल चल रही है, तो मैं बोलता जा रहा हूँ और सामने आवाज आ नहीं रही है, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है ना, तो ऐसा लगता है कि पीपल आर देयर। और उसके अलावा ये हमारी क्लास है ना इंटरएक्टिव है, इंटरएक्टिव क्लास है ना, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन होना ही चाहिए, ठीक है ना। आप क्लास अच्छा के बीच में कभी भी एक्सक्यूज मी बोल के और जैसा भी आपका दिल हो वैसा बोल के मेरे को रुका के सवाल पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम इन द मिडल ऑफ द क्लास आल्सो, जी, ठीक है ना। शुक्रिया। ठीक, दिस इज द पॉइंट। और चलो बिस्मिल्लाह, लेट्स स्टार्ट। उनको करो सीरी जम करो सीरी आली जवान सर डॉक्टर तुम्हारे अब जो 11:10 जीवा आवा सर। दिस इज व्हाई आई नीड अ मॉनिटर। बात समझ में आई आप लोगों की? जी ठीक है, गॉट इट। दिस इज द रीजन, ठीक है ना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मेरे को बाहर जाना पड़ेगा उसके बाद। सी दिस इज माय नेम इज मोहम्मद कफील अंसारी, ठीक है ना। हम तकरीबन 2-2.5 साल से ये क्लासेस ले रहे हैं। अबू धाबी से ही शुरू की थी हमने क्लास लेना, अबू धाबी में पहली क्लास ली थी, फिर हम फिजिकल क्लास ही ले रहे थे अबू धाबी में। एक इस्लामिक सेंटर है जो अबू धाबी में है, भाई है उनको पता होगा, एयरपोर्ट रोड पे एक इस्लामिक सेंटर है, वहां से क्लासेस ले रहे थे हम। उसके बाद इंडिया में आके भी बॉम्बे में हम बॉम्बे में हैं, अभी मुंबई में है, और मुंबई में भी बहुत सारी क्लासेस ली। और फिर बाद में जब ये आपका कोरोना की वजह से जो बंद हुआ, तब से है ना ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्लासेस का मेन मकसद क्या है, हम पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, बेसिक ग्रामर। कौन सा ग्रामर सर? मेरे भाइयों मेरी बेसिक बहनों, ग्रामर। बेसिक ग्रामर, पॉइंट टू बी नोटेड है बेसिक ग्रामर। और बेसिक ग्रामर को भी ना नॉन कन्वेंशनल वे से लेंगे। व्हाट इज अ नॉन कन्वेंशनल वे? आहिस्ता आहिस्ता करके आपको समझ में आएगा हाउ आवर क्लासेस इज वर्किंग। 2-3 क्लास बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी क्लास कैसे चल रही है। द पॉइंट इज आपको कम से कम 5 क्लास तो हमारी अटेंड करनी ही है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हमारा वे ऑफ टीचिंग या वे ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक है ना जी। जी ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम सिर्फ बेसिक के ऊपर ही बात करेंगे, ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं, कभी कभी थोड़ा सा डीप भी चले जाएंगे, लेकिन नॉर्मली हमारा काम क्या है, बेसिक ग्रामर को समझना। बेसिक ग्रामर के अंदर हमको बहुत कम चीजें समझनी है, और जैसे जैसे आप देखेंगे हमारा काम ही है, दिस इज आवर जॉब, दिस इज आवर प्रॉमिस टू मेक इट इजी फॉर यू, ठीक है ना। आपके लिए आसान करना ही हमारा काम है इंशाल्लाह ताला। जब तक आप में से एक को भी नहीं समझ में आएगा, हम दूसरा वो लेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। यस सर। हेलो, कोई सवाल सब? जी कोई, चलिए जी, अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। नहीं बीच में कोई ठीक, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा अभी देखिए, द पॉइंट टू बी नोटेड अगेन इज, ग्रामर जो होता है ना, वो ग्रामर जो आप समझिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो यूजलेस है। हाँ, यूजलेस है अनलेस अनलेस उसको है ना आप, अनलेस आप उसको मीनिंग्स और है ना कॉन्टेक्स्ट या उसके कनेक्टेड डाइकोस के साथ है ना समझेंगे नहीं। ग्रामर सिर्फ है ना रास्ता दिखाने का, रास्ता दिखाने का एक, समझ लीजिए रास्ते में जो लैंप्स होते हैं ना, स्ट्रीट लैंप्स होते हैं ना, स्ट्रीट लाइट्स देखी है आप लोगों ने? जी। है ना, जैसे ये रास्ता है ना, तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होती है ना, ऐसे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होती है, लेफ्ट ले लो, या रोड साइन लगे हुए होते, टेक अ लेफ्ट, टेक अ राइट, है ना, टेक अ राइट ऐसे। तो ग्रामर सिर्फ ये रोड साइंस है, ये इन रोड साइन का अकेले कोई मतलब नहीं होता है, टेक अ लेफ्ट का कोई अकेला कोई मतलब नहीं होता है। उसका मतलब जब बनेगा जब आप रोड के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखेंगे कि अच्छा ये रोड है, इसके ऊपर के मतलब बता रहा है ये लेफ्ट हो गया,
ठीक है ना, उर्दू में एक शेर भी है, निकल जा अक्ल से आगे कि ये नूर चराग राह है, मंजिल नहीं है। आपकी मंजिल क्या है? कुरान को समझना आपकी मंजिल है। ठीक है ना, ग्रामर आपकी मंजिल नहीं है। ये इसी तरीके से समझा जा सकता है, जैसे हम स्कूल बच्चे थे, जब हम लोग साइकिल चला रहे थे तो हमारे साइकिल के पीछे 2 हेल्पिंग व्हील लगे हुए थे ना, 2 हेल्पिंग व्हील, याद है आप लोगों को? जी। है ना। फिर जब जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो एक व्हील चला गया, फिर और हम और बड़े हुए तो दूसरा व्हील भी निकाल दिया, है ना। फिर अब हम बिना व्हील के भी साइकिल चला सकते थे, हेल्पिंग व्हील के, राइट। जी। जी, तो ये ग्रामर इसी तरीके से है कि आप लोगों को ऐसी हेल्प करेगा जैसे इंग्लिश का ग्रामर। इंग्लिश का ग्रामर अभी शायद आप लोगों में से बहुत बहुत लोगों को याद नहीं होगा कि इन्फिनिटिव का क्या मतलब है, जेरेंड का क्या मतलब है, एक्यूजिटिव केस का क्या मतलब है। बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता होगा यार। याद है आप लोगों को ये बात? समझ में आ रही है? लेकिन जब हम बच्चे थे, जब स्कूल में पढ़ रहे थे, जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब हमको मालूम था एक्यूजिटिव केस किसको बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस किसको बोलते हैं, जेनिटिव केस क्या होता है, राइट और रॉन्ग? जी सही बात। नहीं, अब हमको जरूरत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में वी आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, है ना। एब्सोल्युटली। हाँ, जी। तो अब हमको ये ग्रामर की जरूरत नहीं है। तो ग्रामर है ना, आपको रास्ता दिखाने के लिए, एक बार आपको रास्ता याद हो जाएगा ना कि लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, दोबारा आपको स्ट्रीट साइन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो ग्रामर है ना सब कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है? रास्ता याद रखना। ठीक बात। इम्पोर्टेंट है ना रास्ता याद रखना है। इसका मतलब है ना कि है ना लफ्जों की मीनिंग याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, लफ्जों की मीनिंग याद रखना बहुत जरूरी है। और अरबी में एक बात अरबिक में याद रखनी कि एक चीज के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, एक लफ्ज के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला। लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है ना। अरबिक के अंदर है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों 28 अल्फाबेट्स होते हैं, और कोई कोई बोलता है 29 अल्फाबेट्स। किसी को याद है ये अल्फाबेट्स? जी। जी। जी अलिफ, सर। अलिफ, बा। दूसरा बा। बा, माशाल्लाह। ता। ता, माशाल्लाह। फा, अलिफ बा ता सा, जीम, जी। या। हा। बादेन हा, बादेन खा। माशाल्लाह। उसके बाद तौल। तौल। रे। जे। या। तो ये ना सीन, या। शीन। सीन शीन, या। कॉफ, सॉद। तौल। दौद, तौ। दौ, तौ। दौ, ये क्या है? आइन। ये है ना आइन है, आइन, ठीक है ना। हाँ, इसको मजाक मजाक में थोड़ा सा लाइटली अगर लेंगे ना, और अगर गौर से देखेंगे आप लोग, तो देखिए ऐसा लगेगा एक पेंगुइन है, ठीक है, जिसके हलक में मछली फंसी हुई है। अगर किसी के हलक में मछली फंस जाएगी तो कहाँ से आवाज निकालेगा? हलक से आवाज निकालनी है इसकी, कहाँ से? आइन। ठीक है ना। हाँ, आइन। अच्छा, ये क्या है? गैन। फा, ऑफ। ये क्या है? ऑफ। ये भी हलक से निकालनी है आवाज, ऑफ, ठीक है ना। ये काफ, काफ। लाम, लॉन। मीम, मीम। नून। नून, वाव। हा, हा। वाव, और या। या। ये कितने हो गए? हम गिनेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14, और 14 और 14 28 है। तो फिर 29वां कौन सा है? हमजा। 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 है ना। कंफ्यूजन इसके अंदर है कि अलिफ और हमजा, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन है, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर करेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। तो कोई कोई बोलता है कि 28 ही कैरेक्टर है, 28 ही अल्फाबेट्स हैं। कोई कोई बोलते नहीं, 28 प्लस 29 को हमजा को भी पकड़ो तो कितने हो गए? 29 हो गए। 32। हाँ जी, 29 हो गए, ठीक है ना। इसमें से है ना
लाल कलर कैसे आएगा? इसमें से है ना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, Excuse me, जी सिस्टर, जी जी, I don't get the screen. सबको नहीं आ रही कि आपको ही नहीं आ रही स्क्रीन? एवरीबडी गेटिंग द स्क्रीन? या जी सर, जी सर। सिस्टर आप है ना मुझे आ रही स्वाइप है। कीजिए, राइट लेफ्ट स्वाइप। पहला दिन है ना, 2-3 दिन ऐसा होगा, यू विल गेट कंफर्टेबल विद जूम। अगर आपने पहले यूज नहीं किया है तो 1-2 दिन में आ जाएगा सिस्टर। राइट लेफ्ट उसको स्वाइप कीजिए, आएगा इंशाल्लाह। I tried, but it's not coming. कोई anybody has a solution for her? Maybe she can log in and then again, I mean, come out. Log सिस्टर out. leave and लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। Okay, now I get it. Getting it? Yeah, Okay सिस्टर। thank you. देखिए जो मैंने सर्कल किए हैं ना, जो मैंने सर्कल किए हैं ना जी, इन कैरेक्टर्स के आगे, इन अल्फाबेट्स के आगे जब अल लगता है ना, तो आप अल के आगे अगर अद दुनिया लिखा होगा तो आप क्या पढ़ेंगे? अल को भूल जाएंगे, राइट? ये लाम को खा जाएंगे, हजफ कर देंगे, भूल जाएंगे, खत्म कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, राइट? और आप क्या पढ़ेंगे? अद दुनिया, राइट और रॉन्ग? जी, ऐसे ही करते हैं ना? हाँ, जी, जी। तो ये वाले जो कैरेक्टर मार्क किए हुए हैं ना, उन सबको है ना सोलार कैरेक्टर बोलते हैं, सोलर अल्फाबेट बोलते हैं। कौन से? सोलर अल्फाबेट। सोलर। हाँ, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अल शम्स के अंदर जो शाह आता है ना, वो भी इन्हीं में का एक है, ठीक है ना? जी। हाँ, इसके और जो बचे हुए हैं ना, उनको लूनार बोलते हैं, यानी कमरी, ठीक है? जी। हाँ, ये पॉइंट याद करने का इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको है ना याद रहना चाहिए कि इनके आगे जब अल लगता है ना, तो ये एसिमिलेट हो जाता है, लाम है ना गायब हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, एसिमिलेट हो जाता है, ठीक है ना? दिस पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? जी। हाँ, एक तो आपने हम सबको ये कैरेक्टर्स तो याद है ना, अल्फाबेट्स तो पूरे याद है, ठीक है ना? जी। हाँ, अभी एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना जा रहा हूँ। इन अल्फाबेट्स के अंदर है ना वॉवल्स हैं। इंग्लिश के वॉवल्स किसको याद है? A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. हाँ, A-E-I-O और U। यू। A-E-I-O-U। हिंदी में भी वॉवल्स होते हैं, याद है आप लोगों को? हिंदी वाला कोई है क्या? आ, ई, ए, है ना? इसका मतलब है छोटा वॉवल और बड़ा वॉवल, लॉन्ग वॉवल और शॉर्ट वॉवल होता है। शॉर्ट वॉवल, लॉन्ग वॉवल, शॉर्ट वॉवल, लॉन्ग वॉवल, है ना? तो ये सारे शॉर्ट वॉवल्स हैं, लॉन्ग वॉवल है इंग्लिश के। लॉन्ग वॉवल बनाने के लिए डबल ए लिखना पड़ेगा, राइट आपको? है ना? जी सर, जी सर। देखिए अरबी के अंदर है ना, ये वाले वॉवल्स होते हैं। कलर कौन सा चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट। ये जो है ना अलिफ, वाव और या, ये क्या है? लॉन्ग वॉवल्स है, अलिफ, वाव और या। और ये आवाजें भी कौन सी निकालते हैं आपको मालूम है? ये बेसिक आवाज होती है, जो वॉवल्स की आवाजें होती है ना, वो बेसिक ह्यूमन आवाजें होती है, बेसिक ह्यूमन साउंड होते हैं। आ, उ, ई, राइट? है ना? है ना? आ, यस सर। उ, ई, ये बेसिक ह्यूमन आवाजें होती हैं और ये वॉवल्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? लॉन्ग वॉवल्स हैं। कौन से वॉवल्स हैं? लॉन्ग वॉवल्स। लॉन्ग वॉवल्स। लॉन्ग, दे आर लॉन्ग वॉवल्स। लॉन्ग वॉवल्स हैं तो शॉर्ट वॉवल्स भी होनी चाहिए। तो अरबी में शॉर्ट वॉवल्स कौन से होते हैं? है ना?
शॉर्ट वॉवल्स भी होते हैं अरबी के अंदर, और वो भी आपको याद रखना है और उनका नाम भी याद रखना है। मगर उसके पहले एक पॉइंट और भी याद रखना है आपको, ये अलिफ, वाव और या, एक तो लॉन्ग वॉवल है, दूसरा है ना ये मल्टीटास्किंग है। कौन है? मल्टीटास्किंग। इनके है ना बहुत ज्यादा काम है अरबी के अंदर। ऐसे है ना 10 अल्फाबेट्स है जिनके बहुत ज्यादा काम होते हैं, उसमें से ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है अलिफ, वाव और या। एक तो ये लॉन्ग वॉवल्स है, ठीक है ना, और ऊपर से ये मल्टीटास्किंग भी है, और तीसरा पॉइंट है ना ये वीक भी है बेचारे, कमजोर भी है, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इनके बारे में। क्या क्या पॉइंट है? एक तो these are लॉन्ग long वॉवल्स हैं, vowels, मल्टीटास्किंग करते हैं ये लोग, लैंग्वेज के अंदर ये मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत जगह बहुत सारा काम होता है इनका, ठीक है ना। और ये वीक भी है, अलील है, बीमार है, वीक है, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को ना होमवर्क करना कंपलसरी है। नो होमवर्क, नेक्स्ट टाइम आपको मॉनिटर साहब खुद ही आप एंट्री नहीं देंगे क्लास के अंदर, ठीक है ना। ये पॉइंट सबको क्लियर है ना? हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए हमने लॉन्ग वॉवल्स देखे, देयर आर शॉर्ट वॉवल्स आल्सो। ऐसे एक निशानी लगी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं अरबी में? फतहा। हाँ, और उर्दू में? जबर। हाँ हाँ, उर्दू में जबर बोलते हैं इसको, जबर। जबर का मतलब ये होता है ऊपर, फारसी का लफ्ज है, उसका मतलब क्या होता है? ऊपर, ठीक है ना। हाँ, दूसरी एक निशानी लगी होती है, इसको क्या बोलते हैं? जेर। जेर, है ना। जेर का मतलब ये होता है नीचे, फारसी का लफ्ज है जेर। हाँ, जैसे अगर आपको मालूम है, एक उर्दू में एक लफ्ज है जबरदस्त, मालूम है आपको? जी। और एक लफ्ज है जेर दस्त। जेर दस्त यानी हाथ के नीचे, जबरदस्त यानी जो चीज मेरे हाथ के ऊपर है वो, अरे जबरदस्त है, यानी इट इज आउट ऑफ माई हैंड। अल्टीमेटली द मीनिंग इज इट इज आउट ऑफ माई हैंड, ठीक है ना। अच्छा, इसको जेर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? एक और होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? पेश। पेश। पेश बोलते हैं ना। पेश का मतलब होता है आगे, पेश का मतलब होता है आगे रहना, किसी चीज के आगे रहना, पेश पेश रहना। उर्दू में एक लफ्ज, एक मुहावरा भी यूज होता है, पेश पेश है, ये हर काम में पेश पेश, ठीक है ना। देखिए अरबी में इसको बोलते हैं फतहा। ये आपके बार, अब हमेशा इसको हम क्या बोलेंगे? फतह। फतहा ही बोलेंगे। इसको बोलेंगे दम्मा, कसरा। और इसको बोलेंगे कसरा। और ये याद करने का एक ऑर्डर है, इसको ये ऑर्डर में याद नहीं रखें, इसको ये ऑर्डर में याद रखना है आपको, दम्मा, फतह और कसरा, ये वाले ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है। यही आपका होमवर्क भी है, दम्मा, फतह और कसरा। कसरा। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यही आपके शॉर्ट वॉवल्स भी हैं। देखा आप लोगों ने, यही शॉर्ट वॉवल्स भी हैं, ध्यान दिया आप लोगों ने? जी। दू, है ना, दा, दी, सही है गलत? है ना। और अगर इसके आगे वाव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दू, दा, दी, है ना। ये अब लॉन्ग वॉवल्स जुड़ जाएंगे इसके अंदर, राइट और रॉन्ग? जी। है ना। हाँ, अगर अभी हम शॉर्ट वॉवल्स सीख रहे हैं, ये शॉर्ट वॉवल्स है, ये शॉर्ट वॉवल्स है। इनके बारे में आपको स्टोरी भी बोलेंगे कल इंशाल्लाह ताला, मगर अभी तो पहली क्लास है ना, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा, इसके लिए हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और भी निशानियां होती हैं अरबी में। ये एक निशानी होती है, इसको क्या बोलते हैं? दो जबर। दो जबर। हाँ, और क्या बोलते हैं सिस्टर? फतहा, फतहतैन। फतहतैन। हाँ,
लेकिन इसको बोलते हैं तनवीन। हाँ, तनवीन ऑफ फतहा, तनवीन ऑफ फतहा। हाँ, और इसको बोलते हैं तनवीन ऑफ कसरा, कसरा, और इसको बोलते हैं तनवीन ऑफ दम्मा। और इसको भी याद करने का ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है? पहले दम्मा, फिर फतह और फिर कसरा, यही ऑर्डर में याद रखना है। तनवीन क्या होती है, क्यों ऐसे आती है, कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताएंगे कि तनवीन क्यों, कैसे और क्या है, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये सब चीजें कल भी रिपीट करेंगे, फिर कल के बाद रिपीट नहीं करेंगे, कल देखेंगे अगर कोई शायद आज ज्वाइन नहीं हुआ हो तो शायद कल हो जाए। हाँ ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और एक निशानी होती है, एक छोटा सा W बना होता है, वो क्या होता है W? तशदीद। तशदीद। हाँ, और शद्दा भी बोलते हैं उसको, राइट? जी। हाँ, तशदीद और शद्दा भी डबल डी आएगा ना, शद्दा भी बोलते हैं उसको। हाँ, तशदीद और शद्दा भी। ठीक है, इसके बारे में भी कल रिसर्च करेंगे, क्यों ऐसा होता है, क्यों लिखा जाता है। और एक ऐसा ऐसा या तो फिर ऐसा बना हुआ होता है, ये क्या होता है? सुकून। हाँ, सुकून। और उर्दू में, उर्दू वाले क्या बोलते हैं इसको? जज़म। जज़म है ना, उर्दू वाले जज़म बोलते हैं ना इसको, है ना। या ऐसा होता है या ऐसा होता है, या ऐसा होता है या ऐसा होता है, राइट? याद है ना आप लोगों को, ऐसा होता है? जी ठीक जी। है ना। हाँ, तो ये आप लोग है ना, आज का होमवर्क में ना जरूर लिख लीजिए। होमवर्क करना है ना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो माशाल्लाह बहुत ज्यादा इल्म रखते होंगे, खाली समझने के लिए आए होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले क्लासेस ले रखी होगी, दोबारा शायद समझने के लिए आए होंगे। बहुत सारे होंगे जो बिल्कुल न्यू होंगे, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल फ्रेश होंगे, जो आज पहली बार शायद समझने के लिए आएंगे। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, लेकिन क्योंकि आप एक क्लास में आए हैं, तो वो क्लास की रिस्पेक्ट रखते हुए आपको होमवर्क करना जरूरी है। ठीक है ना। आपका होमवर्क क्या है कि आपको ये याद रखना है कि ये दम्मा, फतह और कसरा है, ऐसे ही लिखना भी है, दम्मा, फतह और कसरा। और तनवीनों को भी कौन से आइडिया में लिखना है? इस वाले में लिखना है, दम्मा, फतह और कसरा। दम्मा की तनवीन, फतह की तनवीन और कसरा की तनवीन। ठीक है ना। जी। दम्मा की तनवीन और फतह की तनवीन और कसरा की कसरा की तनवीन। तनवीन। और फिर उसके बाद में ये भी याद रखना है कि इसको शद्दा बोलते हैं, और इनमें से कोई भी आए उसको सुकून बोलते हैं। ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, आज है ना ये छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास है, और अपनी क्लास के बारे में हम कैसे आपको सिखाएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता 3-4 क्लासेस में हम आपको और भी बताएंगे कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और कैसे कैसे उसके बारे में नॉन कन्वेंशनल वेज क्या है हमारे सिखाने की। ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना ही बस है। और मैं आप लोगों को एक वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, ग्रामर, सिर्फ ग्रामर आपका कोई भी हेल्प नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है ना। तो वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ, तो आप, ये क्या होगा, और किसी को सवाल पूछना है ना, प्लीज डोंट रेज योर हैंड, जस्ट आस्क द क्वेश्चन। मेरे को नहीं दिखती स्क्रीन दोबारा, एक बार ये स्क्रीन हटाने के बाद है ना, आई कैन नॉट गो बैक टू माई स्क्रीन। देखिए, ये वेबसाइट है हमारा arabicpree.com, arabicpreelearning.com। आप लोग गए होंगे ना इस पे रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए? जी। इसमें एक ऑप्शन है ना, ये वाला वर्ड गेम। हाँ, ये आपके मोबाइल में भी खुलेगा, ये वाला ऑप्शन है, दिख रहा है आप लोगों को? जी। हाँ, ये वाले वर्ड गेम में जाके है ना, ये है ना, एक कोशिश की गई है कि तकरीबन 80% वर्ड, रिपीटेटिव वर्ड्स जो है ना कुरान के अंदर, उनके बारे में है ना हमने ये बनाया है, क्या बोलते हैं, क्विज।
तो ये क्विज अगर आप बाकायदा याद कर लेंगे ना, तो ये क्विज बहुत आसान है। अगर इसमें से सारे लफ्ज याद हो गए तो आपको ऑलमोस्ट 60-70% लफ्ज जो है ना बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे अगर किसी को पता है सलाहा का मतलब क्या है, ये 4 ऑप्शन उर्दू में भी बता सकते हैं। He acted righteously. ही एक्टेड राइचियसली। तो फिर अगर आप राइट आंसर या रॉन्ग आंसर भी देंगे तो नीचे उसके बारे में कौन से एक वन ऑफ द यानी एक रेफरेंस भी दिखाया जाएगा कि भाई ये रेफरेंस में यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है ना। तो आप है ना ऐसे ये बिना, जब ये गेम खेलने आएंगे ना तब डू नॉट, यानी आप किसी भी रूल वगैरह को, सारे रूलों को भूल जाइए, बिना रूलों को याद रखिए, बस मीनिंग याद रखने के लिए इधर आई, ठीक है ना। जैसे ये कफरा, कफरा का मतलब कौन किसी को पता है? देयर आर 4 ऑप्शन। Disbelieved. हाँ, he disbelieved. Yeah. he disbelieved. तो he disbelieved याद रखिए। और फिर आगे दूसरा आंसर कतबा। He wrote. हाँ, Decreed. He decreed. He decreed. एक He लफ्ज के decreed. बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे डिक्रीड है ना, अपन बोलते हैं ना उसकी किस्मत में लिख दिया गया है, तब क्या लिटरली लिख दिया गया है ना, डिक्री हो गया ना जी। डिक्री, ठीक है ना। दौराबा, दौराबा का मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं। एक मतलब होता है मारना, ही हिट, और एक सेट फोर्थ करना, आगे बेचना या दिखाना, दरबल्लाहु मसाला, वो भी एक मतलब होता है, ठीक है। जी। मक्कारा, चलिए ट्राई कीजिए ना, लेट्स ट्राई एवरी डे इन द एंड ऑफ द क्लास वी विल प्ले दिस गेम, ठीक है ना जी। सो लेट्स ट्राई एवरीबॉडी, अनम्यूट योरसेल्फ, जवाब दीजिए, गलत तो गलत, सही तो सही, अल्लाह आसान करेगा इंशाल्लाह ताला। ये करिए ये जैसे वर्ड गेम, हेलो, वर्ड गेम जो है जैसे इंग्लिश में है वैसा उर्दू में नहीं है। एक मिनट सर, व्हाट इज द क्वेश्चन? वर्ड गेम जो इंग्लिश में मतलब उसके ये आंसर है तो उर्दू में नहीं है इस तरह। हाँ उर्दू में है ना साहब, उर्दू में है ना। आप है ना कहाँ जाइए मालूम है, ये 3 डॉट्स पे जाइए और यहाँ पे मोबाइल में आपको दिखा सकता हूँ, मेरे को नहीं मालूम, एक ट्रांसलेट करके ऑप्शन आता है, किसी को पता है क्या? मैं आई एम नॉट गुड इन टेक्नोलॉजी। एक ऑप्शन आता है सर, ये मेरे टैब में नहीं आ रहा है, मोबाइल में से मैं कनेक्ट करके ना आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो उसमें एक ऑप्शन होता है ट्रांसलेट करने का, तो आप कोई भी जबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर्स है ना वो आने लगेंगे, उर्दू में भी आने लगेंगे। मगर जो गूगल ट्रांसलेट है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। गूगल ट्रांसलेट तो गूगल की तरह ही ट्रांसलेट करता है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखिए ट्रांसलेशन है ना, एक अलग अलग सी बात बताता हूँ आपको, ऐसे तो मैं कल बताने वाला था। ट्रांसलेशन है ना अजब सी चीज होती है सर, तो उसको है ना समझ के करना पड़ता है। देखिए अभी हमारे पास टाइम है ना, मैं यही लिखता हूँ। कौन ट्रांसलेट करेगा मेरे लिए? तू कौन है? हाँ, ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। Who are you? Who are you? Now translate it in English. Who are you? Who you are? Both are same. Same. है ना, both are same. लेकिन तू कौन है एक फ्लैट क्वेश्चन है, एक फ्लैट क्वेश्चन है। Who are you? एक फ्लैट क्वेश्चन है, राइट? जी। लेकिन तू है कौन, ये क्वेश्चन के अंदर एम्फेसिस है। भाई तू है कौन, मेरे को पूछने वाला तू है कौन। देखा, जबकि आप देखेंगे यही लफ्ज यूज हुए हैं, आगे पीछे करने से क्या होता है, सेम लफ्ज है, कुछ अलग अलग लफ्ज यूज हुए हैं क्या? नहीं सर, अलग अलग नहीं यूज हुए, सेम लफ्ज है। लेकिन है ना, देखिए इसमें एक सोल है, इसके अंदर एक चीज है, इसके अंदर गुस्सा भी दिख जाएगा आपको, तू है कौन, है ना। और ये एक फ्लैट क्वेश्चन है, तू कौन है, ठीक है कोई बात। लेकिन इंग्लिश क्या कर रही है, हु आर यू। इंग्लिश क्या कर रही थी, हु आर यू, राइट और रॉन्ग? जी। इंग्लिश सिर्फ हु आर यू ही करेगी, क्यों? क्योंकि जो असली जबान है, समझने वाले हैं ना, असली जबान जब समझेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा
कि ये जबान के अंदर है ना, वो सामने वाला तंज कर रहा है, सामने वाला टोन दिखा रहा है, सामने वाला गुस्सा दिखा रहा है, ये वाला सिंपल क्वेश्चन है तू कौन है। दोनों में बहुत भारी फर्क है। यही फर्क आहिस्ता आहिस्ता जाके आपको अरबी में भी दिखेगा। आपको मालूम पड़ेगा कि अरबी जैसी जबान में है ना बहुत ज्यादा एम्फेसिस यूज होता है, स्पेशली कुरान के अंदर। जब सवाल पूछेगा अल्लाह ताला, तो वो सवाल सीधे दिल के अंदर उतर जाएंगे। जब उतरेंगे, जब आपको जबान समझ में आएगी। राइट और रॉन्ग? जी। ट्रांसलेशन वाली की तो मजबूरी है बेचारे की, वो इसके आगे जा ही नहीं पाएगा। कैसे करेगा वो? क्या करेगा? पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। उसने गुस्से से कहा हु आर यू, और समथिंग आई डोंट नो, कोई अपना जबान से कुछ और यूज करता होगा। राइट? अंडरलाइन कर देगा, बहुत हुआ तो अंडरलाइन कर देगा हु आर यू। लेकिन देखिए, जिसको उर्दू आती होगी ना, उसको मालूम है इन दोनों लफ्जों में, इन दोनों सेंटेंस में, जुमलों में फर्क है। तो ट्रांसलेशन के बारे में ज्यादा सर ध्यान रखिए, ट्रांसलेशन कोई काम की चीज है नहीं, असली जबान समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मकरा, एवरीबॉडी अनम्यूट योरसेल्फ और आप बताइए, गलत तो गलत, मकरा का मतलब बताइए। He plotted. हाँ, ही प्लॉटेड, ठीक है ना, ही प्लॉटेड। हाँ, माशाल्लाह। शकरा, He was grateful. he was grateful, माशाल्लाह। हाँ, हमला, He carried. माशाल्लाह, ही कैरीड। ये सब चीज में ही आ रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, ही कैरीड। आबादा, He worshipped. वर्शिप, ये माशाल्लाह। सदाका, told the truth. He told the truth. हाँ, उसने सच कहा, उसने सच कहा, सदाका। हाँ, माशाल्लाह, ठीक है ना। नजारा, He He looked saw. at. He looked. हाँ, उसने देखा। हाँ, सब चीजें पास्ट टेंस में आ रही हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, जी। और सबके आगे ही लगा हुआ है, ठीक है ना। जी। कादा, He sat. हाँ, कायदे आजम, कादा, He said. ही सेड। He sat. हाँ, ये सबको पता है। जी। कतला, He killed. Killed. ही किल्ड। हाँ, माशाल्लाह, ही किल्ड, वेरी गुड। फसका, He transgressed. हाँ, हद से तजावुज कर देना, हद से आगे बढ़ जाना। हाँ, कोई लिमिट को तोड़ के क्रॉस कर जाना, है ना, जी। ठीक है ना। ट्रांस क्या हो गया, ट्रांसग्रेस, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको है ना, जब आपको फुर्सत मिले, जब टाइम मिले, जब आपका दिल हो ना थोड़ा सा ऑफिस के काम से रेस्ट लेने के लिए, घर के काम से रेस्ट लेने के लिए, तो आपको गेम खेलना है। कौन सा गेम खेलना है? अरबिक जबान को समझने वाला गेम। और वो ये हमारे वेबसाइट पे और बहुत सारे वेबसाइटों पे भी है, लेकिन यहाँ पे भी है, हमारे वेबसाइट पे भी, ठीक है ना। अब मेरा एक सवाल है, आपकी क्लास एवरीडे चलानी है हमको, या एक दिन छोड़ के? व्हाट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू ऑल? How many classes are there in total? Sister, it will be around 55-60 classes. So I think every day is better because then it will be Ramadan. हाँ, रमजान में तो हमको करना ही है, हम खाली इसकी टाइमिंग आगे पीछे करनी है बस। हम देख लेंगे कि यूएई की और इंडिया की टाइमिंग को मैच करके, और मेरे को लगता है यही टाइमिंग होगी तकरीबन जो हमने डिसाइड की है। 7:20 इज द टाइमिंग। हाँ एवरीबॉडी? Yes, yes. Yes. और जो लिंक आएगी ना, वो मैं 2-5 मिनट पहले ही भेज दूंगा लिंक इंशाल्लाह ताला। और फिर कल जो आज किया है ना, वी विल रिपीट एवरीथिंग टुमारो, ताकि जो कल ज्वाइन करेंगे ना उनको फिर आसान हो जाए, और फिर उसके बाद रिपीट नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है सर, जो आपने जो लिखा है, जी सर। क्या फरमाया हुजूर? हेलो, जो आपने लिखा अभी समझाया, वो पूरा सेंड कर सकते हो हमको? अच्छा, आपको जो नोट बनाए मैंने वो? हाँ, वो। अरे वो मेरी राइटिंग समझ में आ जाएगी आपको, मैं भेज दूंगा। मैं रिकॉर्डिंग भी भेज सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन जो एब्सेंट होंगे उनको रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। लेकिन अच्छा। देखिए, ऐसा कीजिए कि है ना, वो अगर रोज एब्सेंट होके रोज रिकॉर्डिंग मांगेंगे तो मेरे को भी शर्म आएगी भेजने के लिए। नहीं, एब्सेंट होके नहीं, के सामने रहेगा वो। हाँ, अब मैं तो भेज दूंगा सर, आपको अभी भेज दूंगा। ओके।
और नहीं, मैं रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ऐसे मांगिए कि कहीं एक आधा दिन एब्सेंट हो गए तो मेरे को भी अच्छा लगेगा रिकॉर्डिंग भेजने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल भेज तो दूंगा, लेकिन मेरे को मालूम होगा कि अगर आप लोग रोज एब्सेंट होके मेरे से रिकॉर्डिंग मांगेंगे, आई विल सेंड इट, लेकिन मेरे को अंदर से मालूम होगा कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। बिल्कुल। ठीक है ना? चलिए, अब कल मिलेंगे सर इंशाल्लाह। एक दिन छूट के रहे तो कैसा रहेगा? कम अगेन सर, कम अगेन। ये क्लास एक दिन छोड़ कर रहे तो कैसा रहेगा? और साथी को कंफर्टेबल रहेगा क्या रहेगा? एक दिन छोड़ के करेंगे तो कैसा रहेगा ये क्लास? अच्छा रहेगा या नहीं अच्छा रहेगा? नहीं मतलब अच्छा रहेगा। हाँ, तो लेट्स वोट फॉर इट। और हाउ मेनी? डिवाइडेड। देखिए, वोटिंग करते हैं कौन कौन। पहले आप सब अपने हाथ नीचे कर लीजिए जो आपने ये उठा रखे मतलब, और फिर वोट कीजिए। बताइए किस किस को पसंद है कि एक दिन छोड़ के एक दिन किया जाए। आई एम रेडी फॉर इट। सर वो शो ऑफ हैंड से करवाए ना? हाँ, शो ऑफ हैंड्स कीजिए ना, शो ऑफ हैंड्स। रेज योर हैंड्स, देयर इज अ ऑप्शन टू रेज योर हैंड, शो योर हैंड। माशाल्लाह, 2 हो गए अभी, 20 में से 2 हुए हैं सर, 3। ऐसे तो पूरी मखनोजिया फैमिली हाँ बोल देगी सर। 3। नहीं ये सिर्फ इसलिए कि और थोड़ा मशहूरी की वजह से 4, 5। आई थिंक एवरीबडी कैन सी ना? नो नो, सब सबको दिख रहे होंगे ना हाथ उठे हुए? सर तो 4 ही हुए हैं लोग, सिर्फ 4 लोग ही राजी हैं सर। सर असल में दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। हाँ, दोनों ऑप्शन ठीक है सर। तो रोज फजर में तो उठ ही रहे, एक आधा घंटा लेट से, और क्या, 1 घंटा आगे, और क्या। ये कर सकते हैं सर, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में ये कर सकते हैं कि वीकेंड के ऊपर एक दिन ऑफ कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स अगर सब वीकेंड पे एग्री ऑफ करें ही है। तो। सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, संडे के दिन ऑफ है सर। अच्छा, संडेज को ऑफ है भाई साहब। हेलो जी जी, संडे को you ऑफ। can ask for voting for every day as well. I asked for it, nobody is raising the hand, only 4 लोगों ने हाथ उठाए। ये रोजाना के लिए है सर? हाँ नहीं, एक दिन छोड़ के ये एक दिन अल्टरनेटिव डे के लिए था सर। हाँ। रोजाना करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक मुसलसल बाकी रहेगा। हाँ, एक सिलसिला बाकी रहेगा। लेकिन सिलसिला देखिए, बाकी मैं रहेगा। रोज करने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोग होमवर्क करना है रोज, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना होमवर्क करना है आप लोगों को। होमवर्क बहुत जी जरूरी है। इंशाल्लाह कोशिश हाँ, करेंगे सर क्योंकि इंशाल्लाह। कोशिश नहीं सर, मैं मॉनिटर साहब जो भी आप 2 काम करने हैं। एक तो मैं आपको वॉलंटियर कीजिए कि कौन मॉनिटर बनेंगे, तो फिर ना वो मॉनिटर साहब खुद ही आपको एंटर नहीं कराएंगे अगर आपका होमवर्क नहीं होगा। होमवर्क बहुत जरूरी है साहब। ठीक है ना? ठीक है, तो अभी डिसाइड हो गया कि हमारी क्लास एवरीडे होगी इंशाल्लाह। कल मिलेंगे, कल है ना, फिर डिटेल में हम जो आज जो किए ना उसको डिटेल में समझेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? तनवीन तनवीन क्या होती है, सुकून क्यों लगा हुआ है, और वो सारी चीजें समझेंगे, और फिर आगे डिटेल में क्लास कल से एक्चुअली क्लास शुरू होगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिसके कोई सवाल है ना तो ऐसे the order of the जी oh जी it's जी okay. जी जी, क्या सवाल? हेलो, कोई सवाल था क्या? नहीं ना? देखिए, जिसने कोई मैसेज भेज रखा है ना, तो प्लीज मेरे को है ना ऐसे नहीं मैसेज भेजिए। कुछ सवाल हेलो होगा तो आप डायरेक्ट पूछ लीजिए, ठीक है? जी, आपने अभी मीनिंग्स जो भी बताए थे उससे पहले आपने कहा था कि उससे पहले द लगा हुआ है और सब चीज पास्ट टेंस में है। ये ऐसा क्यों है, ये आप बाद में बताएंगे क्या इसका? हाँ, मैं बताऊंगा ना। मैंने सिस्टर, मैंने आपको बताया ना कि वो गेम खेलते टाइम ना कोई रूल याद मत रखिए। आहिस्ता 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 इंशाअल्लाह ताला चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो गेम के टाइम पे सिर्फ मीनिंग याद रख लीजिए कि सौदाका का क्या मतलब है, और दौराबा का क्या मतलब है, जो भी वहाँ मतलब लिखा हो उसका मतलब याद रख लीजिए। और मतलब याद रखने का एक बहुत आसान तरीका क्या है, उसका रेफरेंस याद कीजिए। कि कुरान में से कोई रेफरेंस मिल जाएगा ना, नीचे आपको लिखा हुआ है, बहुत जल्दी से लफ्ज पूरा याद हो जाता है। ठीक है ना?
क्योंकि कोई लफ्ज नया हम देखते हैं ना, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे किसी भी जबान में हो, एक लफ्ज मैं बोलूंगा कोलोकल, तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। लेकिन मैं बोलूंगा कोलोकल लैंग्वेज, हाँ, तब तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज के बारे में कुछ बोल रहा है, आम जबान के बारे में कुछ बोल रहा है। आप समझ में आ रही? तो आप रेफरेंसिंग के साथ याद रखेंगे ना इंशाल्लाह ताला, तो फायदा होगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप कल मिलेंगे, इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व 7:20 रहमतुल्लाह। इंशाल्लाह टुमारो। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।